تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم پرانے عہد نامے میں سے یرمیہ کی کتاب کے مطالعے پر ہیں۔ یہ پرانے عہد نامے کے بڑے انبیاء میں سے ایک ہے اور آج ہم 5ویں اور 6ٹھے باب کا مطالعہ کریں گے۔ پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ بہت شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مطالعے کا آغاز کریں گے۔ خوش آمدید بھائی یوسف، جیسا کہ آج ہم 5ویں اور 6ٹھے باب کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ ہمیں ان ابواب کے متعلق بتائیے۔ 5ویں باب میں یہودا کے گناہ کی بات ہوئی اور اس کے نتیجے میں عدالت اور تباہی ہوئی، اور خدا اس کی عدالت کرے گا پر اس کو تباہ نہیں کرے گا، اور میں کہوں گا کہ بہت سی قوموں کی ہستی مٹ گئی، وہ نہیں رہے، مثلاً یبوسی اور ہتی پر اس قوم کی بدکاری کی عدالت خداوند نے خود کی، اور باوجود اس کے اس نے ان کو ہلاک نہیں کیا۔ 5ویں باب میں اس کا واضح بیان ہے، اور 6ٹھے باب میں یروشلم کی سزا ہے۔ لکھا ہے کہ اس کا محاصرہ ہوگا، اور یقیناً جس شہر کا محاصرہ ہو اس کی حالت بہت بری ہوتی ہے، اور یقیناً جو کچھ ان کے ساتھ ہوا میں کہوں گا کہ وہ خود ان کے ذمہ دار ہیں، اور نبوکد نظر کے آنے سے پہلے خداوند نے ان کو تنبیہ کی جب تک وہ توبہ نہ کریں خداوند ان کی عدالت نہیں کرے گا، تاکہ خداوند کی اس بھیجی ہوئی مصیبت سے وہ نرم ہو جائیں، لیکن ان لوگوں نے فرمانبرداری نہ کی۔ صحیح۔ 5ویں باب کی پہلی آیت ہے، اب یروشلم کے کوچوں میں ادھر ادھر گشت کرو اور دیکھو اور دریافت کرو، اور اس کے چوکوں میں ڈھونڈو، اگر کوئی وہاں ملے جو انصاف کرنے والا اور سچائی کا طالب ہو تو میں اسے معاف کروں گا۔ کیا یہ ممکن ہے کسی شہر میں ایک بھی راست باز نہ ہو؟ ہمیں یروشلم کی حالت کے متعلق بتائیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی ہاں، یہ سایہ نے اپنی کتاب کے پہلے باب میں یروشلم کی حالت کو سدوم اور عمورہ جیسا کہا، اور یرمیہ 5ویں باب کے مطابق ان کی حالت ان سے بھی زیادہ بری تھی، کیونکہ یہاں پر میں بتانا چاہوں گا کہ سدوم میں تو لوط راست باز تھا، لیکن یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ ایک بھی راست باز شخص نہ تھا، اور غور طلب بات یہ ہے کہ یہ ایک چنی ہوئی قوم تھی جس کا برا حال تھا، جن لوگوں کو خدا نے شریعت اور ہیکل کے لیے نبی ہونے کے لیے چنا، وہ اس پر شکر گزار نہ ہوئے، اور لکھا ہے کہ میں اپنے پاکستان کے لیے اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا۔ بھائی یوسف، اس نے پہلی آیت میں کہا کوئی راست باز نہیں، دوسری آیت لکھا ہے اگرچہ وہ کہتے ہیں زندہ خداوند کی قسم تو بھی یقیناً وہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ اے خداوند، کیا تیری آنکھیں سچائی پر نہیں ہیں؟ تو نے ان کو مارا ہے پر انہوں نے افسوس نہیں کیا، تو نے ان کو غارت کیا پر تربیت پذیر نہ ہوئے، انہوں نے اپنے چہروں کو چٹان سے بھی زیادہ سخت بنایا، انہوں نے واپس آنے سے انکار کیا۔ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ یہاں 2 باتوں کا ذکر ہے، انہوں نے واپس آنے سے انکار کیا، اور اس سے ہمیں صفنیہ 3 کی آیت یاد آتی ہے، اس نے کلام کو نہ سنا اور وہ تربیت پرہیز نہ ہوا۔ اس قوم نے تربیت سے اور واپس آنے سے انکار کر دیا۔
तीसरे बाब में वापस आने के अल्फाज 9 बार इस्तेमाल हुए हैं और चौथे बाब में लिखा है अगर तू वापस आए, पर उन्होंने वापस आने से इनकार किया, और इससे हमें ये मालूम होता है कि उन्हें खुदावंद की जरूरत ना थी और इसरार किया। जी हाँ, और मैं यहाँ पर कहूँगा कि खुदावंद ने जो भी उन्हें सजा दी वो सच में उसके हकदार थे। भाई यूसुफ, इसके बाद 5वीं आयत से लिखा है, मैं बुजुर्गों के पास जाऊंगा और उनसे कलाम करूंगा, क्योंकि वो खुदाउन की राह और अपने खुदा के अहकाम को जानते हैं। लेकिन उन्होंने जुआ बिल्कुल तोड़ डाला और बंधनों के टुकड़े कर डाले। 6ठी आयत पर अपनी राय दीजिए। इसलिए जंगल का शेर बब्बर उनको फाड़ेगा, बियाबान का भेड़िया उनको हलाक करेगा, चीता उनके शहरों की घात में बैठा रहेगा। जो कोई उनमें से निकले फाड़ा जाएगा, क्योंकि उनकी सरकशी बहुत हुई और उनकी बरगश्तगी बढ़ गई। उसने शेर बब्बर और बियाबान के भेड़िए और चीते की बात की। भाई यूसुफ, ये जानवर इस शहर के खिलाफ क्या जाहिर करते हैं, इसके मुतालिक बयान कीजिए। वाज़े रहे कि ये हैवान जालिम हैं, और ऐसे लोग हैवानों से भी ज्यादा जालिम होते हैं। जैसे कि हबकूक की नबूवत में कसदियों का जिक्र है कि उनके घोड़े चीतों से भी ज्यादा तेज रफ्तार और शाम को निकलने वाले भेड़ियों से भी ज्यादा खूनखार हैं। इसीलिए तबाह करने वाला नबुकदनजर आया। यर्मिया को लोगों से मोहब्बत थी और खुदा को लोगों से ज्यादा मोहब्बत थी, और इसीलिए उसने उनको आने वाली मुसीबत से आगाह किया। और रोने वाले नबी यर्मिया ने उसे पुकार पुकार कर कहा, और यीशु भी यरूशलेम की हालत पर रोया, क्योंकि वो कौम इन आने वालों से बेखबर थी। भाई यूसुफ कहते हैं कि लोग खुदा की भलाई पर पलते हैं, जबकि गैर माबूदों की इबादत करते हैं। अगली आयत में लिखा है, जब मैंने उनको सैर किया तो उन्होंने बदकारी की और परे बांध कर कैबा खानों में इकट्ठे हुए। जब खुदावन ने उनको सैर किया तो उन्होंने बदकारी की। उस कौम के बारे में बताएं, उसने खुदावन के एहसान का जवाब किस तरह दिया। देखिए, मैं कहूंगा कि इस्तिस्ना के 32वें बाब में मूसा ने इस मौजू पर बात की, लेकिन यसूरून मोटा होकर लातें मारने लगा, और उन्होंने खुदा के रहम पर पलकर और माबूदों की इबादत की। जिसके हालात ठीक ना हो वो अपना पेट भरने के लिए चोरी करता है, और अगर वो अमीर भी हो जाएं तो भी वो शरारत का सोचते हैं, क्योंकि उनके दिल शरारत से भरे हैं। लिखा है कि वो पेट भर कर घोड़े की मानिंद होंगे। हर एक सुबह के वक्त अपने पड़ोसी की बीवी पर हनहनाने लगा। खुदा ने आसमान से उन पर नजर की कि हर कोई अपने पड़ोसी को दुख देता है और अपने पड़ोसी की बीवी से जना करता है, जो बहुत ही अफसोसनाक है। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि खुदा ऐसी हालत में किसी कौम को कैसे माफ कर सकता है। और यिर्मयाह ने कहा, मैं बुजुर्गों के पास जाऊंगा और उनसे कलाम करूंगा, क्योंकि वो खुदा की राह को जानते हैं। लेकिन उन्होंने जुआ बिल्कुल तोड़ डाला और बंधों के टुकड़े टुकड़े कर डाले, और उनके और खुदाम के दरमियान कोई रिश्ता ना रहा। शरीयत की उन दो लोहों को याद करें, जो पहली तख्ती तोड़ता है दूसरी भी तोड़ता है। और जब खुदा के साथ आपका रिश्ता खराब हो तो अपने साथियों के साथ भी रिश्ता खराब हो जाता है। पैदाइश चौथे बाब से पहले 3 बाब हैं, और पैदाइश के तीसरे बाब में खुदा के खिलाफ इंसान ने गुनाह किया, और पैदाइश 4 में भी भाई ने भाई को कत्ल किया। तो आपका कहना है कि दुनिया में सारी बदनवानियां और जुल्म इसलिए हैं क्योंकि इंसान का खुदा से रिश्ता टूट गया। अगर आपका खुदा से अच्छा रिश्ता हो तो दूसरों के साथ भी अच्छा रिश्ता होगा। हो सकता है कि इंसान खुद को मजहबी समझकर ये सब कुछ करता हो, जैसा कि काइन ने सोचा कि वो खुदावंद की इबादत कर रहा है। उस कौम की बदी के नतीजे में खुदावन ने उनकी अदालत करने का फैसला किया। 10वीं आयत है, उसकी दीवारों पर चढ़ जाओ और तोड़ डालो, लेकिन बिल्कुल बर्बाद ना करो। उसकी शाखें काट डालो, क्योंकि वो खुदावन की नहीं है। ये अदालत है, पर इसको मुकम्मल तौर पर बर्बाद ना करने का कहा। क्यों? क्योंकि खुदावंद को लोगों से मोहब्बत है, और बेशक वो सरकश है, पर खुदावंद उनसे मोहब्बत रखता है। ये गैर मशरूत मोहब्बत है, क्योंकि वो कदूस और मुनसिफ है। वो मुकम्मल तौर पर बर्बाद नहीं करता। और मैं कहूंगा कि 10वीं आयत में भी वाज़े तौर पर लिखा है कि बिल्कुल बर्बाद ना करो, और 18वीं आयत में लिखा है कि लेकिन खुदावंद फरमाता है कि मैं उन अयाम में भी बिल्कुल बर्बाद ना करूंगा। और ये सब चौथे बाब की 27वीं आयत के बाद लिखा है, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि तमाम मुल्क वैरान होगा तो भी मैं उसे बिल्कुल बर्बाद ना करूंगा। खुदावंद की कदूसियत की बदौलत ये अदालत हुई, और उसकी वफादारी और मोहब्बत की बदौलत लोग मुकम्मल तौर पर तबाह ना हुए। भाई यूसुफ, फिर 13वीं आयत से झूठे कलाम और झूठे नबियों का तस्करा है।
मैं चाहूंगा कि आप हमें इसके मुतालिक बताएं। और नबी महज हवा हो जाएंगे और कलाम उनमें नहीं है। उनके साथ ऐसा ही होगा, बस इसलिए कि तुम यूं कहते हो, और खुदावंद रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि देख, मैं अपने कलाम को तेरे मुंह में आग और इन लोगों को लकड़ी बनाऊंगा। छठे बाब में लिखा है, क्योंकि वो मेरे लोगों के जख्म को यूं ही सलामती सलामती कहकर अच्छा करते हैं, हालांकि सलामती नहीं है, और यकीनन वो सच नहीं कहते, और खुदावंद उनके दरमियान झूठे नबियों को भेजेगा, क्योंकि उन्होंने तौबा करने और वापस लौटने से इनकार किया। लोगों के अलावा लिखा है, मुल्क में एक हैरत अफजा और हौलनाक बात हुई। नबी झूठी नबूवत करते हैं और काहिन उनके वसीले से हुक्मरानी करते हैं, और मेरे लोग ऐसी हालत को पसंद करते हैं। पसंद करने से क्या मुराद है? जी हाँ, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग मुकाशफा 21 और 22 के मुताबिक झूठ बोलते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि झूठ को पसंद करते हैं। अगर झूठ को पसंद करने वाले ना हो तो लोग झूठ ना बोलें। भाई यूसुफ, आज भी लोग जी, झूठ को लोग झूठ को पसंद पसंद करते हैं। और मैं कहूँगा कि जो लोग मसीह को जानते हैं, जैसा कि मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, और लोग इसके अलावा झूठा रास्ता बनाते हैं, इसलिए कि झूठ को पसंद करने वाले लोग आज भी मौजूद हैं, और इसीलिए आज झूठ का बाजार भी गर्म है, और उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार नहीं किया, जिससे उन्हें निजात मिली। सही। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। आज अक्सर लोग ये समझते हैं कि वो जिंदा हकीकी खुदा की पैरवी करते हैं। बहुत सी कलीसिया का हिस्सा भी हैं, पर हकीकत में वो खुदा के कलाम को नहीं मानते, जिंदा खुदा की पैरवी नहीं करते। हम भी इसी हकीकत में जी रहे हैं, जैसे यिर्मयाह के अयाम में लोग रहते थे। उन्होंने खुदा की पैरवी का दिखावा किया, जबकि असल में उसको रद्द किया। आखिरकार उन्हें मालूम होता है कि खुदा ने उनको रद्द किया। 24वीं आयत है, उन्होंने अपने दिल में ना कहा कि हम खुदावंद अपने खुदा से डरें, जो पहली और पिछली बरसात वक्त पर भेजता है और फसल के मुकर्ररा हफ्तों को हमारे लिए मौजूद कर रखता है। पहली और पिछली बरसात और फसल के मुकर्ररा हफ्तों से क्या मुराद है? जी भाई यूसुफ। देखें, मुल्क किनान को बरसात से पानी मिलता था। ये मुल्क मिस्र की तरह नहीं, जिसे दरिया से पानी मिलता है और इसका जरिया नहीं जानते, क्योंकि दरियाए नील के चश्मों से लोग उस वक्त वाकिफ ना थे। मुल्क मिस्र के लोग दूसरों को नीचा दिखाते थे, क्योंकि उनके पास पानी मौजूद था, लेकिन मुल्क किनान में बारिश के पानी से फसल बढ़ती थी। साल के शुरू से लेकर आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की रहती हैं। आंखें उस पर लगी रहती हैं। तो पहली बारिश अमूमन सितंबर के आखिर या फिर अक्टूबर के शुरू में होती है, ताकि जमीन बीज बोने और फल देने के लिए तैयार हो जाए। फिर पिछली बारिश मई में होती है, ताकि उनके पास फसल की बहुतात हो जाए। और मैं कहूँगा, क्योंकि खुदावंद मुस्तकबिल में उनको अच्छी चीजें बख्शेगा। और आमोस 9 में लिखा है कि जोतने वाला काटने वाले को जा लेगा, यानी अच्छाई ज्यादा होगी। पर रूहानी मानों में मैं कहूँगा कि रूह की पहली बारिश ईदे पेंतीकोस्त के रोज हुई। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद और मसीह की बादशाही से पहले मींह बरसेगा, और खुदा हर बशर पर रूह डालेगा। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया देखेंगे। पेंतीकोस्त पर रूह की बारिश पहली बारिश थी, और ये कलीसिया के लिए थी। बिल्कुल। पर इसके बाद ये इसलिए होगी कि कौमों को मसीह की 1000 साल बादशाही के लिए तैयार करे। ये पिछली बारिश है, ये कौम के लिए है। जी, सिर्फ इस कौम के लिए नहीं, बल्कि हर बशर के लिए, ताकि 1000 साला बादशाही के आगाज में भलाई फैलाई जाए और वो मसीह की बादशाही में दाखिल हों। सही, शुक्रिया भाई यूसुफ। फिर छठी आयत में बिन्यामीन को भागने को कहा है। ए बिन्यामीन, यरूशलेम से पनाह के लिए भाग निकलो, और तकू में नरसिंगा फूंको, और बैत हकरम में आतशीन अलम बुलंद करो, क्योंकि शुमाल की तरफ से बला और बड़ी तब्दीली आने वाली है। भाई यूसुफ, इन अल्फाज के क्या मानी है कि बिन्यामीन भाग जाए?
क्योंकि शुमाल की तरफ से बला और बड़ी तबाही आने वाली है और शुमाल में बाबल है, और नबूवत के मुताबिक मुस्तकबिल में असूर शुमाल का बादशाह होगा, क्योंकि शुमाल की तरफ से बला और बड़ी तबाही आने वाली है और भागने की कोई जगह नहीं। अगर आप एक खराब घर में हो जो कि गिरने वाला हो तो आप सामान की परवाह किए बगैर जल्द से जल्द उस घर से निकलेंगे, वरना आप अपनी चीजों को और अपनी जिंदगी को किसी सूरत भी बचा नहीं सकेंगे। उसने उनको जल्दी करने को कहा क्योंकि अदालत शुरू होने को है और सही। घर गिरने को हैं। घर गिरने को है। कलीसिया के ईमानदार होते हुए अगर हम उसके बुलावे पर गौर करें तो हमें किस चीज से भागने की जरूरत है? एक तरफ तो आने वाले गजब से भागें, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, और हमें यह करना चाहिए क्योंकि कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद दुनिया पर बहुत मुसीबतें आएंगी और हमें उन तमाम मुसीबतों से बचना है और हमें तमाम नापाकी और हर तरह की बुराई से भागना भी है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ऐ मेरी उम्मत के लोगो उसमें से निकल आओ ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक ना हो और उसकी आफतों में से कोई आफत तुम पर ना आ जाए, क्योंकि उसके गुनाह आसमान तक पहुंच गए हैं। हमें आने वाले गजब और जहां की नापाकी से भागना है। भाई यूसुफ 6 से 15वीं आयत में हर उम्र के लोगों की बात हुई। बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द और खवातीन, ये किस बात की तरफ इशारा करती हैं? दर हकीकत ये अफसोसनाक है। यिर्मयाह नबी के किरदार की तरह वो उनकी बदकारी के सबब से बहुत मायूस हुआ। वो जानता था कि उनकी अदालत आने को है, उसे उनसे मोहब्बत थी। और फिर लिखा है कि मैं किससे कहूं और किसको जताऊं ताकि वो सुने और देख। उनके कान नामख्तून हैं, वो सुन नहीं सकते। खुदावंद का कलाम उनके लिए हकारत का बाइस है, वो उससे खुश नहीं होते और इसीलिए मैं खुदावंद के कहर से लबरेज हूं और उनकी हालत देखकर खुदावंद का कहर भड़का मैं इसे जब्त करते करते तंग आ गया हूं। वो मजीद बर्दाश्त ना कर सका, इसलिए कहा, शौहर अपनी बीवी के साथ और बूढ़ा गहन साल के साथ गिरफ्तार होगा और उनके घर बीवियों और खेतों समेत औरों के हो जाएंगे। उनकी हालत अफसोसनाक है। यिर्मयाह ने पूरी शिद्दत से उनको पुकारा कि तौबा करें, कहीं देर ना हो जाए, पर वो और कामों में मसरूफ रहे। और 13वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि छोटों से बड़ों तक सब लालची हैं। लालची सब पैसे के लिए है। आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा? उसे क्या फायदा होगा? पर अफसोस कि आजकल माल की मोहब्बत बहुत से लोगों को, हत्ता के मसीहियों को भी मुतासिर कर देती है। और मैं कहूंगा कि जो खुदा को जानने का दावा करते हैं उन्हें भी पैसों से मोहब्बत है। बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। नतीजा यह हुआ कि नबी से काहिन तक हर एक दगाबाज है। लिहाजा नतीजा ये हुआ कि नबी से काहिन तक जितने भी हैं सब ने गुनाह किया। नबियों और काहिनों को चाहिए कि लोगों को खुदा के पास वापस लाएं, क्योंकि वो मेरे लोगों के जख्म को यूं ही सलामती सलामती कहकर अच्छा करते हैं, हालांकि सलामती नहीं है। वो मेरे लोगों के जख्म को सलामती सलामती कहकर अच्छा करते हैं, इसके क्या मानी है? अच्छा, फर्ज करें कि अगर मेरा बाजू अपनी जगह पर नहीं रहा तो मैं हड्डियों के डॉक्टर के पास जाऊंगा और वो मेरी बाजू को ठीक कर देगा और मेरा बाजू काम करने लगेगा। और मैं कहूंगा कि मेरे बाजू को सही तौर पर ठीक करने के लिए मुझे वक्ती दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा और यही इसका मुस्तकिल इलाज है। और अगर वो डॉक्टर समझदार ना हो तो वो कहेगा कि आपका बाजू बिल्कुल ठीक है, और वो कहेगा कि आपका बाजू बिल्कुल ठीक है और उसने उसको वक्ती दर्द नहीं दिया। पर आप जिंदगी भर शिकायत करेंगे, लेकिन अगर वो डॉक्टर ठीक हो तो वो आपका बाजू ठीक कर देगा। वो मेरे लोगों के जख्मों को यूं ही अच्छा लोगों को तंबीह नहीं करते, लोगों की सरजनश नहीं करते, सलामती सलामती कहते हैं। और हम आज भी आने वाली भलाई और बहाली को बयान करते हैं, जबकि लोगों की मौजूदा बुराई के मुतल्लिक या तौबा की बात नहीं करते, ना गुनाह की ना तौबा की। और यिर्मयाह के दिनों में यही हाल था, क्योंकि वो मेरे लोगों के जख्मों को यूं ही सलामती सलामती कहकर अच्छा करते हैं। और यशायाह नबी ने अपनी किताब के आखिर में 2 बार कहा कि मेरा खुदा फरमाता है कि शरीरों के लिए सलामती नहीं, जो इत्मीनान का मुतलाशी है तौबा करे। सही, ताकि खुदा के बुलावे का जवाब दें। लिखा है, अपनी अफ्तादा जमीन पर हल चलाओ और
کانٹوں میں تخم ریزی نہ کرو۔ اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ میرا سوال 16ویں آیت سے ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ راستوں پر کھڑے ہو اور دیکھو اور پرانے راستوں کی بابت پوچھو کہ اچھی راہ کہاں ہے، اسی پر چلو اور تمہاری جان راحت پائے گی۔ پر انہوں نے کہا ہم اس پر نہ چلیں گے۔ پرانے راستوں سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی یوسف، اس نے ان کو کن پرانے راستوں پر چلنے کو کہا؟ اس سے ہمیں یاد آیا دوسرے باب کے شروع میں لکھا ہے، میں تیری جوانی کی الفت اور تیرے بیاہ کی محبت کو یاد کرتا ہوں۔ اور مجھے اس سے مکاشفہ 2 باب کی ایک آیت یاد آتی ہے، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی، پس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر۔ یاد رکھیں کہ جب آپ خداوند کی راہوں پر چلتے تھے تو آپ کے اور خداوند کے بیچ میں کہوں گا کہ محبت کا ایک رشتہ قائم تھا، آپ کی زندگی خوشی سے بھری ہوئی تھی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ خداوند سے دور ہوئے۔ لکھا ہے تیری ہی شرارت تجھے تعذیب کرے گی اور تیری برگشتگی تجھ کو سزا دے گی۔ اس نے ان کو سنہری صلاح دی، راستوں پر کھڑے ہو اور دیکھو اور پرانے راستوں کی بابت پوچھو کہ اچھی راہیں کہاں ہیں۔ اور کلام مقدس میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ جب آپ پرانے راستوں کی بابت پوچھ کر چلیں تو آپ کی جان راحت پائے گی۔ پر افسوس کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس پر نہیں چلیں گے، انہیں اپنی حالت پسند تھی۔ صحیح۔ 20ویں آیت ہے، اس سے کیا فائدہ کہ سبا سے، لبان اور دور کے ملک سے اگر میرے حضور لاتے ہو؟ تمہاری سوختنی قربانیاں مجھے پسند نہیں اور تمہارے ذبیحوں سے مجھے خوشی نہیں۔ خداوند نے ان کی سوختنی قربانیوں کو کیوں قبول نہ کیا؟ کیا وہ عبادت نہیں؟ جی بھائی یوسف۔ عیسایہ 43:22 میں لکھا ہے، تو بھی اے یعقوب تو نے مجھے نہ پکارا، بلکہ اے اسرائیل تو مجھ سے تنگ آ گیا، اور تو نے اپنے ذبیحوں سے میری تعظیم نہیں کی۔ میں نے تجھے ہدیہ لانے پر مجبور نہیں کیا اور لبان جلانے کی تکلیف نہیں دی۔ تو نے روپے سے میرے لیے کچھ نہیں خریدا اور تو نے مجھے اپنے ذبیحوں کی چربی سے سیر نہیں کیا۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ یہاں ایک رسمی عبادت کا تذکرہ ہوا اور وہ سبا سے، لبان اور دور کے ملک سے لے کر آئے تاکہ خداوند کے حضور گزرانے۔ لیکن میں کہوں گا کہ خداوند ان سطحی چیزوں سے خوش نہیں ہوتا، کیونکہ اگر آپ کا دل خداوند کی طرف مائل نہ ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ آپ کی سب قربانیاں اور آپ کا لبان کسی بھی کام کا نہیں ہے، کیونکہ خداوند کو ہماری محبت کی آرزو ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم خاکسار اس کو دل کی بنیں۔ سچائی پسند اسے ہے۔ باطن کی سچائی اچھی لگتی ہے، یہ نہیں کہ انسان اس کی تعظیم کے لیے قربانیاں گزرانے، نہیں، بلکہ خداوند کو آپ سے کچھ اور چاہیے، اسے آپ کی محبت کی آرزو ہے۔ خداوند نے یسایہ کے ذریعے کلام کیا، یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ صحیح۔ شکریہ، خداوند خدا آپ کو برکت دے۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ 6 باب کی 14ویں آیت ہے، نبی سے کاہن تک ہر ایک دغاباز ہے، کیونکہ وہ میرے لوگوں کے زخم کو یوں ہی سلامتی سلامتی کہہ کر اچھا کرتے ہیں، حالانکہ سلامتی نہیں ہے۔ مجھے بتائیے کہ اس کے کیا معنی ہے کہ وہ میرے لوگوں کے زخم کو اچھا کرتے ہیں؟ ایک قابل ڈاکٹر ہڈی کو اس کی جگہ واپس لا کر اس کو جوڑتا ہے، پر اس سے پہلے درد ہوتا ہے، پر مکمل علاج ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، وہ درد برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے گناہ اور اس سے توبہ کرنے کی بابت نہیں بتایا، صرف سلامتی کی بات کی، ہڈیوں کو ٹھیک کیا، پر مستقل معذوری دی۔ جی، یہ مستقل معذوری تھی۔ کیا کہیں گے جی بھائی بالکل، یوسف؟ انہوں نے ہڈیوں کے ڈاکٹر کی کہانی بتائی۔ انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے بیان جی، کیا۔ بہت خوب۔ ٹھیک ہے، 16ویں آیت ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ راستوں پر کھڑے ہو اور دیکھو اور پرانے راستوں کی بابت پوچھو۔ بتائیے کہ پرانے راستے کون سے ہیں؟
पुराने रास्ते खुदावन के हैं, खुदावन के रास्ता के अलावा कोई रास्ता दुरुस्त नहीं। जब वो खुदावन की राहों पर चलते थे तो उनकी जिंदगी शानदार थी, जब वो उससे फिर गए तो उनकी जिंदगी उलझन का शिकार हुई। खुदावन फरमाता है, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। जी ठीक है। 20वीं आयत है, इससे क्या फायदा कि सबा से लुबान और दूर के मुल्क से अगर मेरे हजूर लाते हो, तुम्हारी सोख्तनी कुर्बानियां मुझे पसंद नहीं और तुम्हारे ज़बीहों से मुझे खुशी नहीं। ये बताइए कि खुदावन ने उनकी सोख्तनी कुर्बानी क्यों रद्द की? खुदा उनकी कुर्बानियों से खुश नहीं हुआ। ए खुदा, तू शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जानेगा। खुदावन सोख्तनी कुर्बानियों से जी, पहले बिल्कुल। दिलों पर नजर करता है। आमीन। ठीक है, सही। शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। भाई यूसुफ, खुदा आपको आपका भी बरकत दे। शुक्रिया। अजीज नाजरीन, मैं यिर्मयाह 6 बाब की 20वीं आयत पढ़ूंगा। इससे क्या फायदा कि सबा से लुबान और दूर के मुल्क से अगर मेरे हजूर लाते हैं, तुम्हारी सोख्तनी कुर्बानियां मुझे पसंद नहीं और तुम्हारे ज़बीहों से मुझे खुशी नहीं। खुदा कहता है उसे सोख्तनी कुर्बानी पसंद नहीं, उसे उनसे खुशी नहीं मिलती, जबकि वो खुदा की इबादत करने का तरीका है। पर खुदा उससे खुश नहीं क्योंकि उनके दिल नापाक हैं। खुदा बाहरी इबादत पर नहीं बल्कि दिलों पर निगाह करता है। लिहाजा अजीजों, मैं कहूँगा कि अपने दिल की हालत को दरियाफ्त करें। खुदा धोखा नहीं खा सकता। आपके गिर्द लोग आपको दुआ करता देखकर, इबादतों में मौजूद देखकर धोखा खा सकते हैं, लेकिन खुदा धोखा नहीं खाता क्योंकि वो दिलों को जानता है। खुद को और अपने दिल के हाल को खुदा की पाकीज़गी की रोशनी में जांचें। खुदा इबादतों से और सोख्तनी कुर्बानियों से खुश नहीं होता। अगर दिल नापाक हो तो पहले अपने दिल को मसीह के दिल से धोएं, तो दिल से की हुई सादा सी इबादत वो भी खुदा के हजूर कबूल होगी। खुदावंद के हजूर दिल से रजू लाएं तो वो आपको कबूल करेगा। आने वाली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। لست أنكر أني مرارا خنتك، لا أنكر لا أنكر لست أنكر ضعفي وخوفي دونك، لا أنكر لا أنكر إن تهت عن مسيرك تحيط بي يمينك، تعيدني لدربك، تعيد لي سلامك. إن تهت عن مسيرك تحيط بي يمينك، تعيدني لدربك، تعيد لي سلامك. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।